Yes, beta. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes. Good morning, ma'am. Ma'am. Yes, Good beta. morning. Yes, yes. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good Yes, beta. Good morning. morning. Thanks, Now ma'am. you all take out your math challenge book. Take out your math challenge book. Yes, beta. Page number 32, chapter number 22. चैप्टर ने Now you all beta open your math challenge book, chapter number 22. यस मैम मैंने ओपन कर दिया चैप्टर नंबर 21 नहीं करवाएंगी 21. करवाए मैम 20 पूछी नहीं थी मैम Do you want to repeat the chapter number 22? Sorry, 21. Tell me, beta. Do you want to repeat this chapter 21? Problem solving, word problem. You can see the problem of related to story. Hello, students. Hello, beta. Listen to me. Now tell me, beta. Do you want to repeat the chapter number 21? 21 को repeat करना चाहते हैं आप? Okay. Then we will see this chapter 21. Okay. After that we will start 22. Okay. Then we will repeat this chapter also. Ma'am, 10, 20 date. How many planets will there be in all? Planets on solar system. Ma'am, that ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Chapter 20. 21st chapter. Multiply magic. राजेंद्र से 92. Hello, beta. Do you want to repeat the chapter number 21? No, ma'am. 20, No, ma'am. 21 को repeat किया जाए? Yes, ma'am. या start from 22? Yes, ma'am. From 22? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm going to mute you all. First, I'm going to mute you all. 21 से start करिए. 21 से okay. Okay, then we will start. Yes. 22 से. Hello. Yes. Ananya Tiwari. Yes, ma'am. From which do you want to repeat the chapter number 21? Yes, ma'am. Okay then. Okay, beta. So see you all. We will repeat this chapter once more. एक बार और इसको repeat कर लेते हैं, so that you can better understand to this chapter. इस chapter को और अच्छे से आप समझ जाएंगे.
ठीक है, मल्टीपल मैजिक 21 चैप्टर। Multiple magic. So see the first problem. You can see some word problem of this chapter. See the first problem. Now I am going to read this word problem, beta. Pay your attention in your book. अपने book में ध्यान दीजिए आप. What is asking about? There are 8 planets. There are 8 planets. There are 8 planets in our solar system. In our solar system, you know it better that there are 8 planets. आप जानते हैं कि हमारे solar system में 8 planets होते हैं. If there are 12 such solar system, यदि ऐसे 12 solar system होंगे, how many planet will there be in all? तो उन सभी planets पे कितने टोटल, सॉरी, उन सभी सोलर सिस्टम को मिला के कितने टोटल आपके प्लैनेट्स होंगे. ओके, यदि 1 सोलर सिस्टम पे 1 के बारे में दिया हुआ है बेटा, 1 के बारे में दिया है एंड आस्क अबाउट मोर, और ज्यादा के बारे में पूछा जा रहा है. जब 1 के बारे में दिया रहता है और ज्यादा के बारे में पूछा जाता है तो यू विल डू योर मल्टीप्लिकेशन. आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे. ओके, तो 1 के बारे में बताया गया है कि 1 सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं. तो बताइए ऐसे 12 सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होंगे. तो हाउ वी विल सॉल्व इट. फर्स्ट वी विल राइट द स्टेटमेंट फॉर दिस वर्ड प्रॉब्लम. इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट इट. हाउ वी विल राइट. पहले हम फर्स्ट के बारे में बताएंगे. ओके, नंबर ऑफ प्लैनेट, नंबर of planet in one solar system, in one solar system. In one solar system is equal to how many? 8. How many beta? 8 planets. Okay, number of planets in one solar system is equal to 8. And how, as now they are asked about the 12 solar system. अब वो 12 के बारे में पूछ रहे हैं. So we will write the now number of planets in 12 solar system. Solar system is equal to what will we do now. अब हम क्या करेंगे बेटा. 1 के बारे में बताया गया है और 12 के बारे में पूछा जा रहा है. मीन्स आपको करना क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है. सो हाउ वी विल सॉल्व इट. 12 मल्टीप्लाई 8, 12 into 8. ओके, सो 12 into 8 या 8 into 12. ओके, यू कैन से 12 into 8. आप इधर से भी कर सकते हो या इधर से भी कर सकते हो. तो डायरेक्ट आप 12 का टेबल 8 टाइम्स यहाँ रीड करिए. 12 8 जा 96. सो हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन 12 सोलर सिस्टम इज इक्वल टू 96. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, यदि 1 में 8 है तो 12 में कितने हो गए बेटा. 96. 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो इज दैट क्लियर टू यू. Raise your hands. Show me your hands. Yes. Okay. Now see the second word problem, beta. Now see in your book. Number 2. If each box
होल्ड 6 एग्स, यदि हर बॉक्स में 6 एग है, हाउ मेनी एग्स विल देयर बी इन 12 बॉक्सेस? तो व्हाट आर यू सीइंग हियर? क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ 1 के बारे में दिया गया है कि 1 बॉक्स में कितने एग है? 8। और पूछा कितने के बारे में जा रहा है बेटा? 12 के बारे में। ओके, तो हाउ मैनी एग्स विल बी देयर इन सच 12 बॉक्सेस? ऐसे ही 12 बॉक्सेस में कितने एग होंगे? 1 के बारे में दिया हुआ है, ज्यादा के बारे में पूछा जा रहा है। जब 1 के बारे में देके और ज्यादा के बारे में पूछा जाता है, देन वी विल डू योर मल्टीप्लिकेशन। ओके, जब इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम दिए होते बेटा, तो हम उसको ध्यान से पहले रीड करते हैं और हम उसमें चेक करते हैं कि 1 का दिया हुआ है और ज्यादा का पूछ रहा है, तो वहां हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो वी विल राइट द स्टेटमेंट फॉर दिस वर्ड प्रॉब्लम। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट। मे आई इरेज इट? इसको इरेज कर दें बेटा, इरेज कर दें। ओके, now see the second number beta. So read it once again. If each box, each यानी हर एक बॉक्स यानी one box, okay? If each box holds 6 eggs, so we will write here number of eggs in one box. Okay, one box का दिया हुआ बेटा पहले, so we will write about the one box. Number of eggs in one box is equal to 6. How many? 6. और अब कितने के बारे में पूछा जा रहा है? 12 के बारे में. So we will write here. So the number of eggs in 12 such boxes. या यू कैन राइट हियर, सो द नंबर ऑफ एग्स विल बी भी लगा सकते हैं हम, विल बी इन 12 सच बॉक्सेस, कि अब ऐसे ही 12 सच बॉक्सेस, इस तरीके के बॉक्सेस में कितने एग होंगे। ओके, सो यू कैन राइट हियर ऑल्सो नंबर ऑफ एग्स विल बी भी लिख सकते हैं आप बेटा। ओके, विल बी होंगे। ओके, विल बी इन 12 सच बॉक्सेस, 12 such boxes is equal to, what will we do here? Now 12 into 6. We will mention the sign of multiplication. We will solve here. Okay. Now read the table of 12. How many times? 6 times, because 12 into 6. So read the table of 12. 12 6 ja 72. इज दैट क्लियर टू यू बेटा? यदि 1 बॉक्स में आपके कितने एग हैं? 6 एग है, तो हाउ मैनी विल बी इन 12 सच बॉक्सेस? सो वी विल मल्टीप्लाई द बोथ नंबर एंड वी विल गेट 72. सो दिस इज आवर आंसर। ओके, इज दैट क्लियर टू यू बेटा? समझ में आ रहा है? आप इसको एक और तरीके से भी चेक कर सकते हो बट इट इज लॉन्ग प्रोसेस। ओके, दूसरा जो तरीका है, आप क्या करोगे, इसको 6 को हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स आप ऐड करोगे। ओके, 12 टाइम्स आप 6 को ऐड करोगे, देन यू विल गेट 72। ओके, कि एक बॉक्स में यदि 6 एग है तो 12 में कितने होंगे? तो यानी 6 को बार बार हम 12 टाइम्स ऐड करेंगे, बट दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो उसी लॉन्ग को हम शॉर्ट करने के लिए नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो इज दैट क्लियर टू यू? शुरियांश, यस बेटा,
Are you attending the class today first time? आज पहली बार अटेंड कर रहे हो बेटा? सूर्यांश, I am going to please unmute yourself. सूर्यांश. सूर्यांश, where is सूर्यांश? बेटा हेलो सूर्यांश, स्क्रीन पे आइए बेटा. शो मी योर फेस. बेटा अभी आप दिखाई दे रहे थे. सूर्यांश. Okay then. Okay. Now see the next problem. Next word problem, beta. Yes, Yuvraj. Do you want to say anything? Okay. Now see the next problem, beta. Is that clear to you? Is that clear to you? Second word problem is clear to you, beta. All of you. आप सबको clear हो गया है? Raise your hands. Show me your hands. Okay, okay. Okay then. Now see the next number, beta. Third number. What is saying in third number? अब इसको yes, beta. Now see in your book, pay your attention. I'm going to explain the word problem number third. There are 11 players on each side of a cricket team. There are 11 players on each side of a cricket team. Okay? जो क्रिकेट मैच आप देखते हैं बेटा, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, जो भी टीम होती है हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. ओके, देयर आर 11 नंबर्स ऑफ प्लेयर इन ईच टीम, क्रिकेट टीम. ओके, तो यहाँ 11 प्लेयर्स बताए गए हैं कि वन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. इफ 12 टीम्स कंप्लीटेड फॉर द वर्ल्ड कप, और यदि वर्ल्ड कप खेलने के लिए 12 टीम का सिलेक्शन किया गया है, तो हाउ मैनी प्लेयर्स वर देयर इन ऑल, तो 12 टीम को मिलाकर टोटल कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे. ओके, इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स in one team is equal to 11, so then we will find out the number of players in 12 teams also. Okay, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा. 1 के बारे में दिया हुआ है और 12 टीम के बारे में पूछा जा रहा है कि टेल मी द नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स. सो सी द नंबर थर्ड, write the statement. There are 11 players on each cricket team. तो number of players के बारे में बताया गया है. So we'll write about the number of players of one team. Okay. So number of players in one cricket team. Okay. Cricket team is equal to how many? 11 players. Okay. And अब पूछा कितने के बारे में जा रहे हैं बेटा? 12 के बारे में आपको बताना है. So the number of players will be, होंगे. Okay, कितने प्लेयर होंगे अब 12 टीम को मिला के? Will be in 12 cricket team is equal to 12 multiply 11, 12 into 11. Okay, I'm going to solve here beta. 12 into 11. Now read the table.
Now you can read the table of 12. How many times? One time. First number is 1. You can see here two number 1 1 1 1 11. So we will multiply in first digit number. पहले वाले digit में हम इसको multiply करेंगे. What will become? 12 1 जा 12. 12 1 जा 12. So what will be right here? 12 का 2 and carry 1 on this tens place. Okay. अब हम tens place पे carry कर देंगे. Now we will read the table of 12. How many times? 1 times more. एक बार और पढ़ेंगे क्योंकि हमारा tens place पे क्या है बेटा? 1 है. तो we will read the table once more. 12. 12 1 जा 12 and add this number 12 and 1. 12 plus 1 is equal to 13. Okay. So how many players? Now in 12 such teams, 132. Is that clear to you बेटा? हमने क्या किया बेटा? 12 into 11. Okay, जो number of players है और जो number of teams है, आपस में इसको हम दोनों को क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा नंबर 11 इसमें देखिए पहले क्या दिया बेटा? 1 प्लेस पे 1 है, 10 प्लेस पे भी 1 है. तो इन बोथ नंबर we will multiply by 12. Then we will get 132. Is that clear to you, beta? This is our answer. Okay. So number of players in 12 cricket team is equal to 132. Is that clear to you, beta? समझ में आ रहा है? Raise your hands. Raise your hands. Show me your hands. Okay. Okay then. Now see the fourth number, beta. What is saying in this word problem? इसमें क्या कहा जा रहा है? The parking attendant. Pay your attention in your book, beta. See this fourth number. अपना ध्यान दीजिए बुक में और इस फोर्थ नंबर को देखिए. The parking attendant collected ₹5 from each car. जो पार्किंग अटेंडेंट होते हैं बेटा वो क्या करते हैं? कहीं आप जाते हैं, किसी शो वगैरह को देखने जाते हैं या किसी फेयर में जाते हैं आप, तो क्या करते हैं? अपनी बाइक या अपनी जो भी व्हीकल आप लेके जाते हैं तो उसको क्या करते हैं? क्यू में खड़ा करते हैं ना. तो वहाँ जो चार्जेस लिए जाते हैं बेटा उसको बोलते हैं पार्किंग अटेंडेंट. जो वहाँ जो भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उनकी वो देखभाल करते हैं तो उसके बदले में वो क्या करते हैं बेटा? चार्ज लेते हैं. ओके. तो जो चार्ज लेते हैं उसको बोला जाता है पार्किंग अटेंडेंट. ओके. तो वो क्या कर रहा है बेटा? फॉर 1 कार के लिए वो ₹5 ले रहा है चार्ज. ओके. एंड इफ देयर वर 11 कार पार्क, और यदि वहां 11 कार को पार्क किया गया है तो हाउ मच डिड ही कलेक्टेड इन ऑल. तो बताइए कि उसने टोटल कितने पैसे कलेक्ट किए हैं. ओके. व्हाट इज आस्किंग हियर बेटा? वंस मोर आई एम गोइंग टू रिपीट इट. कि एक पार्किंग अटेंडेंट है जो एक कार को खड़ी करने के लिए ₹5 चार्ज लेता है. तो अब आप बताइए कि 11 कार को खड़ी करने के लिए वो कितने चार्जेस लेगा. ओके. सो वी विल राइट द स्टेटमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम. May I erase it, बेटा? इरेज कर दें. Show me your hands. Shreya, Faj, is that clear to you? Faj, show me your hands. Okay, Varun. Okay, Faj. Okay. Now see the fourth number. Okay, I am going to solve it. इसको solve करने जा रहे हैं हम. Okay, now see the next fourth number. Okay, यहाँ charges के बारे में पूछा जा रहा है बेटा. So we will write for the charges. Charge. Okay, charge for 1 car parking. For 1 car parking. Park कर रहे हैं बेटा.
इज इक्वल टू हाउ मच 5 रुपीज. ओके, कितना ले रहे हैं बेटा वो 5 रुपीज. ओके, 1 कार को पार्क करने का चार्जेस 5 रुपीज. सो व्हाट विल द चार्जेस? ओके, सो charges for 12 car parking. सीधे सीधे आप ये देखिए कि 1 के बारे में दिया है और अदर के बारे में, ज्यादा के बारे में पूछ रहा है, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना है. और स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि हम फर्स्ट के लिए 1 के लिए क्या लिख रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम जो ज्यादा नंबर पूछा जा रहा है उसके बारे में भी उसी तरीके से स्टेटमेंट को लिखेंगे. ओके, सो चार्जेस फॉर 12 कार पार्किंग इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5. ओके, सॉरी 12 है, नो 11 बेटा. ओके, 11 कार पार्किंग, 11 के बारे में पूछा जा रहा है. सो वी विल 11 into 5 we will do here. 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ सॉल्व हियर. 11 into 5. So read the table of 11 5 times. 11 5 ja 55. 11 5 ja 55. So our answer is equal to rupees 55 will be the charges of 11 such cars. ओके, इस तरीके की 11 कार की पार्किंग का चार्ज होगा 55 रुपीज. ओके, इज दैट क्लियर टू यू बेटा? ओके, जागृति, इज दैट क्लियर टू यू बेटा? रेज योर हैंड, अपना हैंड शो करिए. क्लियर हो रहा है बेटा? जागृति पांडे. ओके, ओके बेटा. Okay then. Now we will solve the 5th word problem. So I am going to read it. Listen it carefully, beta. See the 5th number. 9 boys from 5th classes each acted in a play. Okay, 9 boys from 5 classes. मतलब कितने क्लासेस है बेटा? क्लास कितने हैं? 5. और क्या बोला जा रहा है इसमें? 9 बॉयज को 5 क्लास में से लेना है, एक्टेड करना है, एक्ट करना है. ओके, इन आ प्ले, एक कोई प्ले हो रहा है और उसमें 5 क्लास में से 9 बॉयज उसमें प्ले करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए चूज किए गए हैं. ओके, हाउ मैनी बॉयज वर देयर इन ऑल? सो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल बॉयज कितने होंगे जो इस प्ले में एक्ट कर रहे हैं. ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व इट? वी विल, इसमें पहले आप ये ध्यान दीजिए बेटा कि इसमें कहा गया है कि 5 क्लासेस ईच एक्टेड. ईच, ओके, ईच यानी हर एक, तो हर एक क्लास यानी 5 ईच यानी एक एक क्लास. ओके, तो 5 क्लासेस में से 9 बच्चे एक्ट को प्ले करेंगे. ओके, सो यू विल फाइंड आउट the number of total boys from 5 classes. Okay, so what will be right here? First आप यहां देखिए, if number of boys acted in one class या from one class. okay, number of boys one class से कितने एक्ट कर रहे हैं पहले ये ध्यान से समझ लीजिए. 9. ओके, कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं जो एक्ट कर रहे हैं एक क्लास में से? 9. Okay, so I'm going to write it, the statement for this word problem. Now see the 5th number beta.
Now see the fifth number. Number of boys. If the number of boys acted यानी एक्शन कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी है वो प्ले के लिए कर रहे हैं. एक्टेड इन फ्रॉम नंबर ऑफ बॉयज एक्टेड फ्रॉम 1 क्लास. ओके, 1 क्लास से कितने बॉयज एक्ट कर रहे हैं बेटा? 9. ओके, 9 बॉयज एक्ट कर रहे हैं. 9 नंबर इज now. Have you seen? Yes. So the number of boys acted या will be act from how many classes? 5 classes. Okay, 5 classes is equal to 9 multiply 5. 9 into 5. Is that clear to you? Now solve it. 9 into 5. Read the table of 9. How many times? 5 times. Read करिए. 9 5 जा, 9 5 जा या 5 9 जा. Okay, you can read that table from both sides. दोनों तरफ से आप पढ़ सकते हैं. 5 का पढ़ोगे तो 9 times, 9 का पढ़ोगे तो 5 times. So 9 5 जा 45. So how many boys will be acted from 5 classes? 5 क्लासों से मिलके कितने बच्चे एक्ट करेंगे बेटा? 45. So this is our answer. Is that clear to you? Shreya Singh? Shreya, unmute yourself. Unmute करिए. Unmute. Yes, ma'am. Is that clear to you बेटा? समझ में आ रहा है? जागृत, ये सॉरी श्रेया, इसको हम this chapter we will repeat, sorry, we are repeating second times. Okay, यहाँ हम इसको second times इस सारे वर्ड प्रॉब्लम को हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं. तो दिस इज नाउ क्लियर टू यू. अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? नाउ you can write the statement for given problems. जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ दी गई है बेटा उसके स्टेटमेंट आप लिख सकते हो. Yes, ma'am. ओके, इसको अच्छे से समझ लीजिए. ओके, कि मैम ने किस तरीके से, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, पहले हम कर चुके हैं तो उसके लिए मैंने आपको सॉल्व करके भेजा था. तो उसके स्टेटमेंट को आप लोग समझने की कोशिश करिए. ओके, नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. 6 नंबर. Your time is only 5 minutes left now. So see the 6 number beta. Mini minus collected 12 bags. मिनी माइनस ने कितने बैग कलेक्ट किए बेटा? 12. मिनी माइनस के पास 12 बैग है ऑफ ओल्ड टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम हर फ्रेंड, जिसमें पुराने टेक्स्ट बुक है. ओके, मिनी माइनस ने अपने फ्रेंड से 12 बैग कलेक्ट किए हैं जिसमें क्या बेटा? ओल्ड बुक है. इफ ईच बैग हैड 7 टेक्स्ट बुक्स, यदि हर बैग में 7 टेक्स्ट बुक है, हाउ मेनी टेक्स्ट बुक वर देयर इन ऑल, तो बताइए कि कितने टोटल टेक्स्ट बुक होंगे. सो वी विल राइट हियर, 1 बैग में कितने टेक्स्ट बुक हैं बेटा? 5. वी विल सी द नंबर ऑफ बुक्स इन 1 बैग. ओके, सो वी विल राइट फर्स्ट if the number of books, now see the 6th number, if the number of books in one bag is equal to how many? 5. Okay, 5 books. So how many will be in
कितने के बारे में पूछा है बेटा? 12 के बारे में. So the number of books, so the number of books will be, होंगे कितने होंगे बेटा? will be in 12 के बारे में पूछा गया. 12 bags is equal to 12 into 5. Okay, now see here, 12 into 5, solve the number. Read the table of 12 5 times. 12 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे बेटा? 5 times. So 12 5 जा 60. What will come? 60. So the number of books will be in 12 bags. Okay, the total number of books will be in 12 bags is equal to 60. Okay, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा कि एक बैग में यदि 5 बुक्स हैं तो 12 बैग्स में कितनी होंगी? तो 12 से हम 5 को इनटू कर देंगे. 12 का टेबल 5 टाइम्स रीड करेंगे. सो द आवर आंसर विल बी 12 5 जा 60. ओके देन योर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर बेटा. ओके, टाइम भी फिनिश होने वाला है. सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, यहाँ 7 दिया हुआ है. ओके, 1 बैग में कितने बेटा? 7 बुक्स हैं. मैंने 5 देख लिया था. ओके, 7 है तो हम 7 का टेबल 12 का टेबल 7 टाइम्स रीड करेंगे. 12 7 जा 84. ओके, 12 7 जा 84. ओके बेटा, इसको करेक्शन कर लेना. ओके, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर 5, मैंने 5 लिख दिया था. सो आई हैव सीन नाउ, अभी मैंने देखा है तो यह 7 दिया है. ओके, 7 बुक्स बताए गए हैं. सो वी विल सॉल्व इट. 12 into 7, 12 का टेबल हम 7 टाइम्स रीड करेंगे. सो 12 7 जा 84. तो कितने टोटल बुक्स हैं बेटा? 84 बुक्स हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू ऑल. योर टाइम इज गोइंग टू बी फिनिश. We will see the next chapter tomorrow. कल हम next chapter को करेंगे बेटा. Hello student. Hello बेटा. Are you hearing my voice? Yes, ma'am. ये बताइए बेटा, ये अच्छे से क्लियर हो गया है आपको 21st चैप्टर? Yes, ma'am. आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Okay then. Okay बेटा, then we will see the next chapter tomorrow. कल हम next chapter को करेंगे. Okay बेटा. Yes. Okay, goodbye to all of you. Yes, yes. Bye, ma'am. Okay बेटा. Bye, ma'am.